السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے وقف نمبر 1 سے لے کر وقف نمبر 8 تک پڑھا تھا، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں حروف مدہ کی پہچان۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف مدہ کی پہچان۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ حروف مدہ کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ اب حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک الف، دوسرا واو ہے، تیسرا یا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہے۔ ٹھیک ہے، ایک الف ہے، دوسرا واو ہے اور تیسرا یا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ حروف مدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کے اندر ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کے اندر یہ جو الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے، قرآن کے اندر ان کی پہچان کیسے کی جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے۔ تو یاد رکھیے، الف سے پہلے اگر زبر ہوگا، ٹھیک ہے، الف سے پہلے والے حرف پر، کسی بھی حرف کے اوپر اگر الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با۔ ٹھیک ہے، با الف زبر با۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھ الف ہے، الف سے پہلے والا با، اس کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، با الف زبر با۔ ٹھیک ہے، اب واو مدہ کی پہچان کیسے کرائیں گے ہم؟ اب یہ واو ہے، ٹھیک ہے، واو کے اوپر جزم سکون ہے۔ ٹھیک ہے، اب واو مدہ کو ہم قرآن کے اندر کیسے پہچانیں گے، تو یہ آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں، واو ہے، واو کے اوپر جزم سکون ہے۔ ٹھیک ہے، اب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں با واو پیش بو۔ ٹھیک ہے، بو۔ ٹھیک ہے، تو یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ ٹھیک ہے، تو واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر کسی بھی حرف کے اوپر جب آپ کو پیش نظر آئے گا تو وہ مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو واو مدہ کہا جائے گا اور اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یا مدہ کی پہچان کسے کی جا سکتی ہے، تو دیکھیں یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم سکون آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب یا ساکن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب کہیں یاد رکھو، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گئی تو یا مدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا کیا ہوگی، یا مدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے حروف مدہ کی پہچان کرنی ہے قرآن کے اندر۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں با یا زیر بی، تو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم سکون ہے۔ ٹھیک ہے، اب یا ساکن سے پہلے والے حرف کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے والا حرف کوئی بھی ہو، اگر اس کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، واو ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو واو مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے لیے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہنا ہے کہ یاد رکھو حروف مدہ کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ حروف مدہ ہے، ان حروف مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 3 باتیں ہیں، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہ حروف مدہ کو پڑھتے وقت اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کہیں ہم حروف مدہ کو بغیر کھینچ کر نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم حروف مدہ کو بغیر کھینچ کر نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بغیر کھینچ کر پڑھیں گے ہم، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو، یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے،
ठीक है। तो उसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। तो या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, ठीक है। तो इस या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहली बात है, हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। ये हमने ख्याल रखना है कि हम हुरूफ मद्दा को बगैर खींच करना पड़े, ठीक है। तो ये हमने इस पहली बात का ख्याल रखना है, ठीक है। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। इस बात का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है। तो अब आ की आवाज़ आ रही है, आ, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? ये मुँह के खाली हिस्से से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये अलिफ मद्दा को हम खींच कर पढ़ रहे हैं बा की आवाज़ के साथ, ठीक है। बा वाव पेश बू, ठीक है। तो ये वा मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ रहे हैं वा मद्दा को बा की आवाज़ के साथ, ठीक है। बू बा या ज़ेर बी, ठीक है। बी हम या मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ रहे हैं बा की आवाज़ के साथ, ठीक है। बी, ठीक है। तो बा अलिफ ज़बर बा आ की आवाज़ होगी तो मालूम होगा कि अलिफ मद्दा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब बा वाव पेश बू ऊ की आवाज़ होगी, यानी वाव मद्दा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब बा या ज़ेर बी ई की आवाज़ होगी तो मालूम होगा कि या मद्दा पढ़ा जा रहा है। तो ये पहली बात, इस बात का हमने ख्याल रखना है कि हुरूफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हुरूफ मद्दा को पढ़ते हुए झटका नहीं देना, ठीक है। झटका नहीं देना, हुरूफ मद्दा को पढ़ते वक्त झटका नहीं देना, ठीक है। तो ये दूसरी बात है, इस दूसरी बात का भी हमने ख्याल रखना है, ठीक है। अब झटके से मुराद बा अलिफ ज़बर बा बु बा या ज़ेर बी, तो ये झटका है, ये सरासर गलत है, ठीक है। तो हम हुरूफ मद्दा को झटका देकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात है, हुरूफ मद्दा को हम मजहूल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मजहूल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे, ठीक है। हुरूफ मद्दा को मजहूल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा है, या बा वो पेश बो, या बा या ज़ेर बे, ठीक है। बा बो बे, तो ये मजहूल है, ठीक है। इसी तरीके से हम मजहूल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम कैसे पढ़ेंगे? हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहली बात को हमने याद रखना है, वो भी हमेशा, ठीक है। लेकिन हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, हमने झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना, ठीक है। बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू बा या ज़ेर बी, ठीक है। तो ये अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है और ये या मद्दा है, ठीक है। ये हुरूफ मद्दा कब होंगे? जब अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो या मद्दा होगा, ठीक है। तो ये पहचान है हुरूफ मद्दा की। इस पहचान के ज़रिए हम हुरूफ मद्दा को कुरान के अंदर सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है और या मद्दा है, ये कहाँ से अदा होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम सवाल है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा ये कहाँ से अदा होते हैं, ठीक है। तो उस बात को आपने याद रखना है कि याद रखो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा जो हैं वो जौफ़ी दहन यानी मुँह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। कहाँ से अदा होते हैं? जौफ़ी दहन यानी मुँह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है। जौफ़ी दहन, ठीक है। अब जौफ़ कहा जाता है खाली जगह को, ठीक है। दहन कहा जाता है मुंह को, ठीक है। ये जो हमारा मुंह है इसको कहा जाता है दहन, ठीक है। तो जौफ़ी दहन अब यानी मुंह का खाली हिस्सा। तो ये हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ठीक है। ये तीनों हुरूफ मद्दा हैं, ठीक है। जब ये हुरूफ मद्दा होंगे तब ये जौफ़ी दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होंगे, ठीक है। जब ये हुरूफ मद्दा होंगे, ठीक है, यानी अलिफ से पहले ज़बर होगा तो ये अलिफ मद्दा होगा और जौफ़ी दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा, ठीक। जैसे हम पढ़ते हैं बा अलिफ ज़बर बा आ, ठीक है। अब महसूस करें कि आ की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ होगी तो यानी अलिफ मद्दा की आवाज़ है, ठीक है। तो जब अलिफ मद्दा होगा तो जौफ़ी दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा, ठीक है। अब वाव मद्दा होगा बा वाव पेश बू, ठीक है। वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा होगा, ठीक है। जब वाव साकिन से पहले पेश नहीं होगा तो वाव मद्दा नहीं होगा। जब अलिफ से पहले ज़बर नहीं होगा तो अलिफ मद्दा भी नहीं होगा।
वाव साकिन से पहले पेश नहीं होगा तो वाव मद्दा नहीं होगा, ठीक है। फिर वाव जो होगा वो होंठों से अदा होगा, ठीक है। वाव जो है हुरूफ शफ़विया में से है, ठीक है, यानी जब दोनों होंठों को गोल करेंगे तो वाव अदा होगा, ठीक है। जैसे वाव वाव, ठीक है। जब वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा होगा, फिर वाव मद्दा जो होगा वो जौफी देन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ब वाव पेश बू ऊ की आवाज़ से पहचानेंगे हम वाव को। ऊ की आवाज़ होगी तो मालूम होगा कि ये वाव मद्दा की आवाज़ है, ठीक है। अब बा या ज़ेर बी, ठीक है। या साकिन होगा, या के बजाय सुकून होगी, या साकिन से पहले वाले हरफ के लिए ज़ेर होगी तो या मद्दा होगी, ठीक है। अब या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो ही या मद्दा होगी, ठीक है। या साकिन से पहले ज़ेर नहीं होगी तो या मद्दा नहीं होगी, ठीक है। इस बात को अपने याद रखना है। या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो या मद्दा होगी, जब या मद्दा होगी तो जौफी देन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होगी, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं बा या ज़ेर बी, ठीक है। ई की आवाज़ होगी, जब ई की आवाज़ होगी तो हम पहचानेंगे कि या मद्दा की आवाज़ है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने हुरूफ मद्दा की पहचान करनी है, ठीक है। जब अलिफ मद्दा होगा, वाव अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो या मद्दा होगी। जब ये हुरूफ मद्दा होगी तो जौफी देन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होंगे, ठीक है। अब ये जो या है, या कहाँ से अदा होता है? या के मखरज है, ज़बर का बीच वाला ऐसा जब ऊपर के ताल्लुक के साथ लगेगा तभी या अदा होता है, ये या की मखरज है। जब या साकिन से पहले ज़ेर होगी, या मद्दा होगी तभी जौफी देन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होगी, ठीक है। तो इस पहचान को अपने याद रखना है हमेशा, ठीक है। एक और बात है कि वाव साकिन होता है, ठीक है। ये वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले ज़ेर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। वाव साकिन से पहले या तो ज़बर होगी या पेश होगा, ठीक है। वाव साकिन से पहले या तो ज़बर होगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ब वाव ज़बर बऊ, ठीक है, या पेश होगा ब वाव पेश बू। वाव साकिन से पहले या तो ज़बर होगी, ठीक है, या तो पेश होगा, ज़ेर नहीं होगी, ठीक है। और या साकिन से पहले पेश की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी। या साकिन से पहले पेश की मिसाल, तो या साकिन से पहले ज़बर आएगी, ठीक है। या साकिन से पहले ज़बर आएगी बा या ज़बर बई, ठीक है। और या साकिन से पहले ज़ेर भी आएगी बा या ज़ेर बी, ठीक है। जब या साकिन से पहले ज़बर होगी तो या लीन होगी, ठीक है, या मद्दा नहीं होगी। जब वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो वाव लीन होगा, ठीक है। वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो वाव लीन होगा, ठीक है। फिर वाव लीन को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे वाव ज़बर बऊ, ठीक है। अब या साकिन से पहले पेश की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि या साकिन से पहले या तो ज़बर आती है या ज़ेर आती है, ठीक है। जब ज़बर आएगी तो या लीन होगी, ठीक है। जैसे बा या ज़बर बई, ठीक है। जब या लीन होती है तो या लीन को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बा या ज़ेर बी, ठीक है। अब या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो या मद्दा होगी, ठीक है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। वाव साकिन से पहले ज़ेर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। वाव साकिन से पहले ज़बर भी आएगा और पेश भी आएगा, ठीक है। या साकिन से पहले पेश की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब या साकिन से पहले ज़बर भी आएगी और ज़ेर भी आएगी, ठीक है, पेश नहीं आएगा। और अलिफ से पहले ज़ेर नहीं आता, ठीक है, अलिफ से पहले ज़ेर नहीं आता और पेश भी नहीं आता, ठीक है। अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। तो इन बातों को आपने याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये आज की क्लास हमारी मुख्तसर क्लास थी, इसमें आज हमने हुरूफ मद्दा की पहचान पढ़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने कुरान के अंदर हुरूफ मद्दा की पहचान करनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी और आपके जहन में बैठ गई होगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे दूसरी और क्लास में, तब तक हमको दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।